Hello students, I am Gaurav, your educator, and you're watching Power of Learning. So our today's session is about electricity part 3, which refers to the hot numerical problems. So I have some numerical problems. I request you, if you haven't watched the two parts of electricity, that is electricity part first and second, please go and watch those two parts. After that, watch this current part, that is electricity part 3. Okay, so without wasting your time, let's start to solve the given questions. You can see on your screen the first question is, let me take one color from the color palette, right? Probably red color is the best. Okay, the first question is, a body has minus 80 microcoulomb of charge. Number of additional electrons, that is additional electron in it will be, right? So एक बॉडी है और एक बॉडी पे चार्ज हमें बता रखा है -80 माइक्रोकुलाम। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कुलाम जो कि चार्ज की यूनिट होती है उसके बारे में बता रखा है। जो माइक्रोकुलाम क्या है, स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज है। इट विल बी इक्वल्स टू 1 माइक्रोकुलाम will be equals to 10 to the power minus 6 coulomb, right? Micro is written like this and the symbol of micro is like U type, right? Okay, so a body has minus 80 microcoulomb of charge. Number of additional electrons in it will be, तो हमें बताना है कि कितने एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन होंगे बॉडी पर। आप यहाँ देख सकते हो चार्ज का नेचर क्या है, आगे लिखा है -80 माइक्रोकुलाम। इट मीन्स बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, राइट? तो मुझे पता है ऑल ऑफ यू नो डैट ऑल द बॉडीज आर इनिशियली दे आर न्यूट्रल। कोई भी बॉडी पहले क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अब अगर इसमें से मैं चार्ज निकाल लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाल लूँगा, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाएगी तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अगर न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है, यानी किसी तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन होने के कारण बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इन इट विल बी, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी बॉडी, यानी इलेक्ट्रॉन कितना एडिशनल इलेक्ट्रॉन हम उस बॉडी पर दे दें कि वो उस बॉडी पर कितना चार्ज आ जाए, -80 माइक्रोकुलाम। तो बस मुझे बताना है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हम बॉडी को दें कि उस पर चार्ज कितना आ जाए, -80 माइक्रोकुलाम। सो लेट स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन with magnitudes. So first of all, write down all the physical quantities that are given in question. So we have given Q, that is charge on a body, -80 microcoulomb, right? Minus sign refers to the negative charge. Okay, next is we have to find number of electrons. तो n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, एंड वी नो डैट चार्ज ऑन an electron is 1.6 minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. Okay, in this question the charge on an electron is not given, but you should know, right? So if the charge of electron is not given in the question, don't worry, you should know that thing. This is very simple and general thing you should know. Okay, and we know that by the principle of quantization, Q is equals to Ne. So N is equals to Q by E, right? So what is Q? -80, right? -80 microcoulomb. So all the quantities should be in SI unit. So microcoulomb is not SI unit, so we convert microcoulomb into coulomb. So 1 microcoulomb is equals to 10 to the power -6. So 10 to the power -6 coulomb. So we write down -80 into 10 to the power -6 coulomb. Okay, coulomb, capital C. And on an electron this charge is -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Minus cancels out. If we remove this point, we get extra 10 multiplied in numerator. Okay, 16 5 80, right? And 10 to the power -6
and 10 the power minus 19. Okay, when we cut we get कितना हो जाएगा -19 और ये 10 पावर 6 में यहाँ लगेगा माइनस आ जाएगा आपको कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा, राइट। ये तो आप समझते होगे पावर का। -10 पावर -6 अगर नीचे आता है, मुझे पता है एक्चुअली, आपको भी पता होगा कि पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये आ जाएगा, तो नीचे आएगा 10 की पावर -13। अगर 10 पावर -13 ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर +13 हो जाएगा। और ऊपर ही बगल में लिखा है 10, तो यहाँ 10 लिख दूंगा। तो 5 × 10 द पावर, अब 10 की पावर 13 और यहाँ 10 की पावर +1 ऐड करके लिखूंगा मैं 5 × 10 की पावर 14। इट मीन्स अगर हम बॉडी से 5 × 10 की पावर 14, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर हम किसी बॉडी को दे देते हैं तो उस पर कितना चार्ज होगा, -80 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम काफ़ी छोटा चार्ज है, तो इतना ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होगी बॉडी, ठीक है। तो अवर आंसर इज 5 × 10 पावर 14, तो बहुत बड़ा नंबर है, 10 की पावर 14 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन नोट भी कर सकते हो अपने पास, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन अ कंडक्टिंग बॉडी ए is 6.25 × 10 the power 18. This is power sign, right? 10 the power 18. When it is brought in contact with another identical conducting body of charge -5 coulomb, -5 coulomb. Find the charge present on an each body. तो हर एक बॉडी पे चार्ज कितना होगा। तो क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई तरीके से करके बता देता हूँ। नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन अ कंडक्टिंग बॉडी ए, एक दो कंडक्टिंग बॉडी है ना, एक कंडक्टिंग बॉडी है ए है, एक कंडक्टिंग बॉडी ए है जिसपे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब मुझे क्या बता दे रहा है क्वेश्चन, एक तरीके से मुझे बता दिया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब बॉडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। उसमें कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 6.25 × 10 की पावर 18, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। मुझे बॉडी पे कितना चार्ज है नहीं पता है, मुझे बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है ये पता लग पा रहा है यहाँ से, और बॉडी पे कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है ये पता है, लेकिन बॉडी पे कितना चार्ज है नहीं पता मुझे। तो हम Q = NE के मदद से चार्ज निकाल पाएंगे बॉडी पे कितना होगा। नेक्स्ट लाइन क्या है, व्हेन इट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर आइडेंटिकल बॉडी, अनदर आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉडी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जब इस बॉडी को दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, और जो दूसरी बॉडी है क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब अगर जिस कॉपर वायर की, अगर मेटेलिक कॉपर वायर का पहला बॉडी होगा दूसरा भी सेम ही मटेरियल का बना होगा और दोनों कंडक्टिंग है, तो आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉडी कहना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए वो मेटालिक स्फीयर है, जितने वॉल्यूम का उतने ही वॉल्यूम का मेटालिक स्फीयर ये भी होगा, दोनों सेम मटेरियल से बने हैं। और दूसरी जो आइडेंटिकल बॉडी है उस पर कितना चार्ज है हमें बता चुका है, -5 कूलम। और हमें बताना है फाइंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन ईच बॉडी, यानी जब दोनों को हम व्हेन वी ब्रॉट बोथ मेटालिक स्फीयर, बोथ आइडेंटिकल बॉडीज, देन द चार्ज प्रेजेंट ऑन ईच बॉडी। तो मुझे जब दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे तब हमें बताना है कि चार्ज कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी ले लेता हूँ मैं, ये बॉडी बी है, ठीक है, ये बॉडी बी है। बॉडी ए पे चार्ज मान लेते हैं Q1 है और बॉडी बी पे चार्ज Q2 है, राइट। तो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है। अब दोनों कांटेक्ट में लाते हैं। कांटेक्ट में लाने के लिए चाहे हम यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर से दोनों को टच करा दें, कंडक्टिंग वायर यहाँ लगा दें, तो चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो Q2 मुझे दिया है क्वेश्चन में -5 कूलम, Q1 मुझे नहीं पता है, तो Q1 मैं यहाँ निकाल लेता हूँ बगल में। तो Q = NE की फॉर्मूले से निकाल लेंगे। N मेरे को दे रखा है कितना, 6.25 × 10 की पावर 18। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में, यहाँ देखिए दे रखा है 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दे रखा है। ये हो गया N की वैल्यू और इंटू E मीन्स होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो -1.6 × 10 की पावर -19 कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो
टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। अभी आपको इसके पहले वाली वीडियो मैंने कराया हुआ है, आप देख के समझ जाओगे कि 1 कूलाम चार्ज पे इतना चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ, तो अगर वो स्टैट्स, वो डाटा अगर ध्यान में रहेगा तो काफ़ी आसानी से कर लोगे। तो फिलहाल तो ये माइनस है, तो माइनस आगे आ जाएगा। 1.6 को 10 की पावर 6.25 से इंटू करिएगा और 10 पावर 18 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा। 10 पावर 18 को 10 पावर -19 से करेंगे, इंटू में है तो -1 आ जाएगा। और इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो आ जाएगा 10। आप करके देख लेना, 10 ही आ जाएगा। ठीक है, 6.25 को 1.6 इंटू करेंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस लगाइए। 10 की पावर -1 और 10 कट हो जाएगा। 10 पावर -1 मिस होता है 1/10, तो कट जाएगा, -1 कूलाम आ जाएगा। तो -1 कूलाम Q1 हो गया। ठीक है, -1 कूलाम हो गया। थोड़ा सा स्लाइड कर लेते हैं। अब दोनों बॉडीज़ पे हमें चार्ज पता लग गया। अब इन दोनों बॉडीज़ को कांटेक्ट में लाया जा रहा है कंडक्टिंग वायर से, या इसके बीच हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया, दोनों को टच करा देते हैं, तो दोनों पे चार्जेस बताना है। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन हमें क्या पता था, बाय द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन व्हेन वी ब्रिंग टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट द चार्जेस विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली ऑन बोथ बॉडीज। तो जैसे इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों पे चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, जिस तरीके से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हो, उसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से क्या होता है कि चार्जेस कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नाइदर बी अपीयर्ड और क्रिएटेड, राइट। तो इनिशियली जितना चार्ज होगा बॉडी का, फाइनली भी उतना ही चार्ज होगा। यानी इनिशियली बॉडी का जो चार्ज था और कांटेक्ट में लाने के बाद भी चार्ज उतना ही रहेगा, यानी चार्ज खत्म नहीं हो जाएगा, ना चार्ज कहीं से बढ़ जाएगा, राइट। और दोनों में जो चार्जेस होंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो मान लेते हैं कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों पर इक्वली जो चार्ज आ गया Q0, दोनों पे आ जाता है, क्या आ गया, Q0। और मुझे पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से मैं यहाँ कह सकता हूँ Q इनिशियल इज इक्वल्स टू Q फाइनल, राइट। तो Q इनिशियल कितना है, Q इनिशियल पहले इस पे Q1 था और यहाँ पे Q2 था, तो Q1 प्लस Q2। Q फाइनल कितना हो गया, अब फाइनल जब कांटेक्ट में कर दिया गया दोनों पे सेम चार्ज आ जाएंगे, और क्योंकि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे बराबर बराबर, तो यहाँ Q0 हो गया और यहाँ भी Q0 हो गया। तो अब फाइनली क्या हो गया, Q0 पहले बॉडी पर, दूसरे बॉडी B पर भी Q0 हो गया। और Q1 मेरे पास कितना है, -1 कूलाम है। Q2 कितना है, -5 कूलाम है। और Q0 हो गया 2Q0। तो -1 और -5 ऐड करेंगे, -6 कूलाम हो गया 2Q0। तो Q0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -6/2 डेट इज -3 कूलाम। यानी जब इन्हें हम कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा, -3 कूलाम का चार्ज आएगा। तो मुझसे पूछा गया क्या, फाइंड द चार्ज ऑन एन ईच बॉडी। ठीक है, ये पूछा गया था मुझसे। एक मिनट, इसको मैं स्लाइड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए हो गया। तो फाइंड द चार्ज ऑन ईच बॉडी, वो आ जाएगा कितना, -3 कूलाम हमारा आंसर आ जाएगा। इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे आप देखते हो, अगर मैं हीट की बात करूँ तो हीट एनर्जी में क्या होता है, अगर मेरे पास एक कोल्ड बॉडी है और एक हॉट बॉडी है, अगर उन दोनों को कांटेक्ट में हम लाते हैं इस तरीके से किसी भी कंडक्टिंग वायर से, यानी हीट कंडक्टिंग वायर से, इसमें हीट ट्रांसफ़र हो सके, तो कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी दोनों का टेम्परेचर अगर अलग अलग है और दोनों बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट एनर्जी क्या होती है, हायर टेम्परेचर से, अगर हॉट बॉडी तो हायर टेम्परेचर होगा और यहाँ पे लोअर टेम्परेचर होगा कोल्ड बॉडी में, तो हायर टेम्परेचर से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट एनर्जी फ्लो करना स्टार्ट करेगी। तो तब तक फ्लो करेगी जब तक ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए, यानी जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम ना आ जाए। अगर दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पे है तो उनको कांटेक्ट में लाने पर किसी तरह कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि किसी तरीके का यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है ना। इस तरीके से अगर मैं वाटर लेवल में इम्बैलेंस कर दूँ, ठीक है, वाटर लेवल में इम्बैलेंस करेंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे वाटर लेवल में क्या होता है,
तब तक पानी दोनों में जाएगा बराबर, जब तक दोनों का प्रेशर यहाँ सेम नहीं होना चाहिए, सेम ना हो जाए। ठीक है, चलिए उसको उतना नहीं जाते हम लोग यहाँ पे। इसी तरीके से मैं बस यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि इस पे चार्ज कुछ था, दोनों पे चार्ज कुछ था। यहाँ पे आप देख रहे थे हीट टेम्परेचर अलग अलग था, और यहाँ पे पोटेंशियल अलग अलग है। आगे की वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफ़ी ब्रॉडली तरीके से, और बहुत से बच्चों को पोटेंशियल का सही कंसेप्ट नहीं पता होता है, तो अगली वीडियोज़ में इसको देखेंगे। तो अभी आप फॉर दिस टाइम, अभी के लिए अब ये देखो कि इन दोनों में चार्जेस क्या हैं, अलग अलग हैं। इन दोनों का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलग अलग है। तो जैसे मैं इसे किसी कंडक्टिंग वायर से टच कराऊँ, आपस में टच कराऊँ, किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू इन्हें कनेक्ट कर दूँ, तो ये चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल दो तरह, और तब तक चार्जेस फ्लो करेंगे जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। जब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा तो चार्जेस फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे हम इन्हें कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो चार्जेस क्या होने लगेंगे, एक दूसरे हायर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी में स्टार्ट कर देंगे जाना, और तब तक जाएंगे जब तक दोनों पे चार्जेस बराबर ना आ जाए, तो तब तक जाते रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ ए और बी है, तब तक जाएंगे जब तक, यानी जो चार्जेस जैसे कॉन्टेक्ट में लाएंगे दोनों पे चार्जेस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वही मैंने बोल दिया है क्यू नॉट, और यहाँ ये बोल दिया क्यू नॉट कि दोनों पर चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से क्या होता है, जितना क्यू इनिशियल है उतना ही क्यू फाइनल होना पड़ेगा। तो इनिशियली Q1 प्लस Q2, फाइनली मैंने बताया कि दोनों पे इक्वली चार्ज क्यू नॉट हो जाएंगे। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे, तो ये क्वेश्चन शायद आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन के लिए आप देखते रहिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं इसी से रिलेटेड। फिर इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें आएगा आपका पोटेंशियल, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल उसकी यूनिट, उसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको वहाँ पे मिलेगी। तो अब आ जाते हैं थोड़ा नीचे, हम इसको मैं यहाँ कर देता हूँ स्लाइड, और आपके लिए क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन कर रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद फिर से जो वीडियो की लिंक दी गई है, वीडियो पे आइए, स्क्रॉल करिए और नीचे कमेंट बॉक्स आएगा, उस कमेंट बॉक्स में आपको इसका केवल जो आंसर है वो लिख के देना है। तो मैं देखूँगा किसके इसके आंसर सही हैं, जिसके आंसर सही हैं उसके कमेंट पे लाइक भी आएगा, और साथ में एक हार्ट वाला भी लाइक आएगा, इट मीन्स उसका आंसर सही है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग आंसर करिए ताकि मुझे पता लग पाए। और एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। अ करंट ऑफ 1.6 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पास ईच सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट पहले वाले की तरीके से है, तो आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, राइट। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।